اور آپ کی یہاں پر موجودگی ہم سب کے لیے یقیناً ایک بڑا انسپائرنگ مومنٹ ہے، اور آپ سے آج آپ کی باتیں سنیں گے بڑے غور کا بڑا انسپائرنگ مومنٹ ہے، اور آپ سے آج آپ کی باتیں سنیں گے بڑے غور سے. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. صدر زرداری صاحب آپ پلیز. میں آئے؟ جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ساتھیوں. میں سب دوستوں کو، سب لیڈرز کو، اور خاص کر کے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین کی دعوت پہ آنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ مل کے بیٹھے ہیں. میں میاں صاحب کی صحت کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. انشاءاللہ ان کی صحت جلد بہتر ہو جائے گی اور وہ ہم سب میں ہوں گے، اور پھر اس وقت انشاءاللہ تب تک اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ اے پی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میاں صاحب. شکریہ، بہت شکریہ آپ کو. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں. مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں، سمجھے. تو دوستو، اس اے پی سی کے کامیابی کا جو صحرا ہے وہ آپ سب کے نظر ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چغلیاں کر رہی ہے حکومت، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے، جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں. میرا انٹرویو بین کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے، پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الزام میں، اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہیں. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں. تو دوستو، یہ حالات آج کے ہیں، مگر ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو پتا ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، چاہے یہ کتنا بھی ہمیں زرگوب پہ نہ کریں، کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں. جب سے ہم سیاست میں ہیں، ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو، اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے، لاہور سے. تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں. ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے، اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں، ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے. نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی. کے پی کا بھی کرتا ہے، سندھ کا بھی کرتا ہے، اور پنجاب کا، ساؤتھ کا، ہر جگہ کا کرتا ہے. گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں. ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میری خود بہن جیل گئی ہیں، میری بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل گئی تھی. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان درندوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف کے ساتھ ان نے گزارا ہوگا. مگر میں ان کو بھی سلام بھی کرتا ہوں، مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ
हम साथ हैं आपके, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। में भी 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियाँ साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हमआहंगी बनाई थी, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा और साथ साथ हमने 18th अमेंडमेंट भी पास की। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमज़ोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज़्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिलके 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे। तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस APC में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज़ की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमें दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज़्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ में हमेशा, मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन, इस तख्त पे वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है। मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस ज़माने के जो हालात थे, उस ज़माने में जितनी इश्यूज थे, उस ज़माने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर, ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है। आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूँगा। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे
मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए। और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम शुरका को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बहुत पहले हो जानी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का सेहरा तमाम अपोजिशन रहनुमाओं की नज़र है। उन्होंने कहा कि APC के खिलाफ हुकूमत की हथकंडे ही इस APC की कामयाबी का सबूत है। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी लगाना उनकी जानिब से जुल्म है। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर को खिताब करने की इजाज़त होती है, लेकिन जमहूरी रहनुमाओं के खिताब पर, उनकी तकरीर पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई जाती है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने खिताब में मरियम नवाज को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज मियाँ साहब की बेटी हैं, हमारी भी बेटी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। मेरी नज़र में APC बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम मरियम नवाज के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा उनके कॉज के लिए और वो हमारे कॉज के लिए जद्दोजहद करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कामयाब नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने पहले ही कह दिया था कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है। APC से मुतालिक हुकूमती हथकंडे APC की कामयाबी है। जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, वो कामयाब नहीं होंगे। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि लोग हमें सुनते हैं और सुनते रहेंगे। APC की कामयाबी का सेहरा तमाम शुरका को जाता है। हम इस हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत को बहाल करके रहेंगे। ये कहना था साबिक सदर आसिफ जरदारी का। उन्होंने आखिर में कहा कि फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने खिताब के दौरान बहुत से नकात पर बात की। उन्होंने कहा कि हम जब से सियासत में आए कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी पाबंदियां हों। पंजाब में एक चैनल बैन है, ये हुकूमत की कमज़ोरी की निशानी है। मुल्क की बुनियाद जमहूरियत होती है और हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की, मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान
की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है कि कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनों हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया,
उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है। किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां या तो मार्शल होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की।
और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPEC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है।
कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है।
पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर OIC को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल JIT बनी। अंदाजा कीजिए, JIT बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ न था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। CPAC को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा देरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और CPAC के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। CPAC का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि CPAC के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है
کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں. اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے، نہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جوں ریکھتی ہے. اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عہدے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ. بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں. یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے. اپوزیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیب کے دفتروں، عدالتوں اور جیلوں میں رول رہے ہیں. جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے. جو ایف آئی اے سے بچے وہ اینٹی نارکوٹکس کے ہٹے چڑھ جاتا ہے، اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مذموم سازش کی گئی. میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی. اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا. اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل چکی ہیں. ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس ای سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی. 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں. میڈیا پر خاموشی چھا گئی. نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا، نہ کوئی مانیٹرنگ جج بیٹھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، نہ کوئی سزا. اندازہ لگائیے باپ، احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے.
मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं। बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची है। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा? बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं। इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी? कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शकूक शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल यह है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? यह बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं?
फैसला कर लें आज, क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना, क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आज़ादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है
اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری، سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں. آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، یعنی حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے. بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سرے تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں. آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو. آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی. آج یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے ماشاء اللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا. سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے. یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے. یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں. اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے. اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا. میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے. بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے. اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور
उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायद-ए-आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक़ हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एपीसी इत्तेफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि एपीसी रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की अहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेंगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक्सक्यूज मी, अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ सबकी राय के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा दें प्लीज़।
سابق وزیر اعظم نواز شریف نے APC کے شرکاء سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ میں اچھی طرح وطن عزیز کے حالات سے واقف ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی مصلحت سے بالا تر ہو کر سوچیں. سب جانتے ہیں 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے. میں مولانا کی سوچ پر متفق ہوں. آپ کو اپنے دل سے شکریہ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ دونوں نے ملک کے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پورا ملک آپ کا آواز آج سنے ہیں. بہت ہی خوش ہے کہ اتنے دیر بعد ان کو صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنا واضح پیغام، اور ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، یہاں کے سارے جماعتیں کے لیے آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو ورڈنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہے، انسٹرکشنز ہے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ڈیبیٹنگ what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. ہم نے بہت کوشش کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو بجٹ کے وقت کروائیں، اور ہمارا ذہن میں یہ تھا کہ اگر بجٹ سے پہلے سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہیں کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں. ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، جو ٹائٹل ہے، 2 سال PTI کی سلیکشن کا، PTI کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ، اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے. اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. وہ اس APC سے نامعمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے لکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو پر معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران
हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका चेयरमैन आवाज पीपल्स पार्टी दबाया बिलावल गया। भुट्टो जरदारी इस वक्त एपीसी से खिताब कर रहे हैं। आज तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है, जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से पाकिस्तानी मीडिया पे बोले, जहाँ किसी साबिक वज़ीर सदर को ये हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी एपीसी से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर बजट से पहले सारी जमातें एपीसी करके बजट मुस्तरद कर देती तो आज इतने मुआशी मसाइल ना होते। उनका कहना था कि आज अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए। अगर उनको एहतजाज करने का हक नहीं है, अगर उनको मीडिया में अपना बयानिया देने का हक नहीं है, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं। जॉइंट सेशन में जो इस मुल्क का सबसे अहम फोरम होता है, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा, क्या उम्मीद होगा, हम क्या रास्ता छोड़ रहे हैं। ये जो कुव्वतें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा। हमें उनके सामने आवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में,
गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहाँ से चैलेंज करना है जहाँ वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस आज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बग़ैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब अमीर हैदर होती साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, मोहतरम जनाब मोहसिन दावड़ साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर जमाल दीनी साहब, मोहतरम जनाब शाह अवैस नूरानी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम यहाँ पर मौजूद पार्टीज़ के अकाबरीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज इस APC की सदारत के तहत जो प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ, उस हवाले से जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी हमागीर तकारीर की हैं और इतनी वो कॉम्प्रिहेंसिव तकारीर हैं कि उसके बाद मुझ नाचीज़ को कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। लेकिन यकीनन मैं इख्तिसार के साथ
अपनी मारूजात पेश करूंगा। जनाब कायद मियाँ नवाज शरीफ ने सियासी तारीख का भरपूर अहाता किया। इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ औकात में हादसे हुए जिसने जमहूरियत को डिरेल किया और कम से कम 3 मरतबा डिक्टेटरशिप ने न सिर्फ जमहूरियत के ऊपर कारी ज़रब लगाई बल्कि अदलिया का निज़ाम और ज़िंदगी के हर शोबे में वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। और आज भी अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की है तो ये बात गलत नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, याद करें वो दिन अगस्त 2018 का जब इलेक्शन के बाद एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट और हम सब असेंबली में आए और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कौम से वादा किया फ्लोर द हाउस पे कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है, आरटीएस किस तरह बंद हुआ, किस तरीके से देहातों के रिजल्ट्स पहले आ गए और शहरों के रिजल्ट्स कई दिन ना आए, किस तरीके से इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई, रिगिंग हुई। इसके लिए एक हाउस की कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक चाहे वो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं या कोई और, उस कमेटी ने 1 इंच भी आगे सफर नहीं किया। और इल्ज़ाम दिया जाता है कि ऑपोजिशन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं तो हर तरह से इस इलेक्शन की हवाले से मैं तैयार हूं प्रोब के लिए। अब इससे बड़ा झूठ और यू टर्न क्या हो सकता है। और फिर मैं ये चाहूँगा मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि जो बातें हो चुकी मैं उनको रिपीट ना करूं। और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ पर बड़े मुअज़्ज़ज़ यहाँ पर लीडरान कराम बैठे हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू करनी है और ख़ास तौर पर छोटे सूबों से जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं उन्होंने बात करनी है। तो मैं चाहूँगा कि इख्तिसार के साथ अपनी मारूज़ात पेश करूँ। अब देखिए कि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी और सबसे ज़्यादा तबाही कराची में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, आज़ाद कश्मीर में हुई, चित्राल में हुई। और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई कि वो किसी जगह जाकर वो लोगों की अश्कशोई कर सके, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको बांध सके, उनकी इमदाद कर सके। और आपने देखा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आफतदा लोगों को उन रेलों के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया। और बिलाखिर एक दिन कराची जाकर एक पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलू तो मिट्टी लाई। ये है वो वज़ीर आज़म, वो लीडर जिसके बारे में 2-2.5 साल मैं बड़े माज़ से कहूँगा कि उसमें हमारे बाज़ टेलीविज़न चैनल्स भी शामिल हैं कि उन्होंने किस तरह 2-2.5 साल इस वज़ीर आज़म के बनने से पहले किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया। और आपको पूरी कौम जानती है कि 2013-14 के धरने में 6-7 महीने इसी डी चौक पे दिन रात 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स ने किस तरह उस शख्स को दिन रात
पूरी दुनिया में दिखाया, जो ये कहता था कि जो वजीर आज़म बिजली के बिल में इजाफा करे, समझ लीजिए मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, जो हुकूमत उसके ज़ेरे निगरानी डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है, अगर रुपया गिरता है तो समझ लिए उस हुकूमत का सरबराह फलां है। जो हुकूमत गैस के कीमत में इजाफा करती है, समझ लीजिए कि उसका वज़ीर आज़म फलां है। ये दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि मैं मर जाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। और कर्जे किस तरह लिए गए पाकिस्तान की डूबती मईशत को चलाने के लिए, उसको सारी दुनिया जानती है। मगर उन कर्जों के हसूल के बावजूद इन 2.5 सालों में या 2.25 सालों में क्या हुआ कि आज महंगाई अपने आसमान से बातें कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिश्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे, और ये कोविड से पहले की बात है। कोविड तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बशमूल पाकिस्तान के। हम उस पीरियड की बात नहीं कर रहे, मैं प्री कोविड पीरियड की बात कर रहा हूं कि उस वक्त कोविड के आने से पहले पाकिस्तान की मईशत को ऐसी शदीद ज़रब लगी कि कोविड के आने से पहले जो हमारी GDP थी 2017-18 में 5.6 पे, वो कोविड के आने से पहले 1.9 पे पहुंच गई थी। और झूठ बोला, जो कि इस वजीर आज़म का शेवा है कि वो 3% थी, वो 3% नहीं थी, वो एक्चुअली 1.9% पे आ गई और अब -0.4 पे है। 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गंदम की कटाई के फौरन बाद 66 लाख टन हुकूमत का दावा है कि उन्होंने गंदम प्रोक्योर की। आज गंदम की कीमत 73 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। मार्केट में बताते हैं कि गंदम जो फी मन जो 1300 जो सरकारी कीमत थी, उसके मुकाबले में आज 2600 रुपये या 2800 रुपये फी मन हो चुकी है। और इसी तरीके से चीनी जो 50 रुपये थी, वो आज 100 रुपये तक पहुंच गई। सवाल ये पैदा होता है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि 2018 के आखिर में जब ये हुकूमत आ चुकी थी, जिसने पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें बहानी थी और पाकिस्तान के अंदर बाहर से 300 अरब डॉलर लाने थे, उन्होंने फैसला किया कि चीनी की एक्सपोर्ट की जाए। हालांकि एक्सपोर्टेबल चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं था। एक्सपोर्ट करना और डॉलर कमाना तो बड़ी उम्दा बात है, लेकिन जब चीनी थी नहीं तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत का जुर्म किसने किया? और फिर सब्सिडी भी दी गई, हालांकि सब्सिडी देने की चंदा जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात कि जब 2018 में डॉलर 110-15 रुपए पे था, तो 2019 में जब वो 150-60 तक पहुंचा, तो ये जो 40% रुपए की कीमत में कमी हुई, उसका सारे का सारा नफा उन चंद चीनी के एक्सपोर्टर्स को मिला, जो कि 40 अरब रुपए बनता है। और फिर आपने ये भी देखा कि अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के महदूद ज़र मुबादला का इस्तेमाल इतना क्रिमिनल हो रहा है कि चीनी पहले आपने एक्सपोर्ट की और कीमतें बढ़ा दी और 80 रुपए पे चली गई, और आज चीनी आप
लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से गंदम, अभी सीजन का आगाज हुआ है और गंदम इंपोर्ट हो रही है। ये 73 साल में इस तरह की दिल खराश मंजर इस कौम ने नहीं देखा था। और इसका असल जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, यतीम बेवा, बेटी बेवा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा, उससे पूछें कि जिंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर आपने देखा कि कर्जे इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्जे ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल, 5 साल के कर्जे एक तरफ, 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल में कर्जे एक तरफ। और क्या इन्होंने कौम और मुल्क के लिए कौन से पब्लिक वेलफेयर जो मंसूबे बनाए हैं? एक नहीं, जहां पर भी जाते हैं पूरे मुल्क में वो पहले मंसूबों के ऊपर दोबारा जाके तख्तियां लगा रहे हैं। और फिर जो एहतसाब का अमल यहां पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही कि अगर इन्होंने एहतसाब करना होता तो पहले, सबसे पहले अपनी काबीना में वो लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अरबों खरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वजीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नैब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वजीर आजम। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वजीर आजम, यही हुकूमत। ना नैब ने FIA। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। मीडिया के साथ जो इस वक्त नारवा सलूक है, शायद वो हालिया तारीख में उसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूं कि आज ये APC जिस मकसद के लिए आज इकट्ठा, और फिर हमें कहते हैं कि जनाब इन्होंने इतने कर्जे लिए, तो उसका एक एक पाई का हिसाब तो आप देख रहे हैं। आपने तो कर्जों की एक कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया था। रात के 12 बजे वजीर आजम ने ऐलान किया था कि मैंने जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कर्जे लिए उसके लिए मैंने कमीशन बनाया है। वो कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, मगर उसमें से निकला कुछ नहीं और उसका एक एक पाई का इट इज अकाउंटेड फॉर। ये है वो यूटर्न के मास्टर वजीर आजम की कारकर्दगी, जिसके लिए आज पूरी कौम की नजरें इस APC की तरफ हैं कि आज हम क्या फैसले करते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि जो स्कूलों में जो बच्चियों के वज़ाइफ थे, मैं ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की बात करूंगा कि वहाँ पर बच्चियों को, कौम की बेटियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनको वजीफे दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। हस्पतालों में अद्वियात मुफ्ती वो ख़त्म कर दी गई। CT स्कैन और एक्सरे की चार्जेस मुफ्त थे, वो ख़त्म कर दिए गए। हेपेटाइटिस की अद्वियात फ्री थी, वो ख़त्म कर दी गई। और फिर ये कहती हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफ़ा कहा था या किसी और बड़े जय्यद आलम ने कि रियासत मदीना का नाम लेते वक्त डरना चाहिए और एहतराम करना चाहिए, कि इसको हमें सियासत में नहीं लाना चाहिए इस अजीम पाक नाम को। मगर क्या कहिए कि दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वालों को इतनी भी खबर नहीं कि मदीना में निकलते थे वहाँ पर कि कोई घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, और रात को गंदम की बोरी अपने कांधों पर डालकर उनके घर पहुँचाना, वो है रियासत मदीना का शेवा, ना कि अद्वियात
آپ نے مہنگی کر دی، ادویات کی قیمتیں جو مفت تھیں وہ آپ نے بند کر دی، آپ نے غریب ماری کی، یتیموں اور بیواؤں کا پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ 73 سال میں جو ہر سال بجٹ پہ ایک کلرک کا، ایک گریڈ اپنا 9 کے اپنا ملازم کا جو تنخواہ بڑھتی تھی، آپ نے وہ بھی اس سال ان کو ان 2 سالوں اس سال نہیں دی۔ اس سے بڑا کوئی بھیانک دور پاکستان کی تاریخ میں آ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیا اس عظیم ریاست کا جس کا آپ دن رات نام لیتے ہیں، کبھی وہاں پر کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ آپ پینشن بھی آپ نہیں دیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال، بھیانک صورتحال جو آج ہمارے اس ملک میں ہمیں اس سے سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکی ہے اور بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ میں دیکھتا کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے، اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی، انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس کا احتساب نہ کیا اور اب بھی ہم نے ان تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود بھی ہم نے خاموشی اختیار کی تو یقین کریں وہ خاموشی جرم بن جائے گی اور ہم بھی اس جرم کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ چین جیسا ایک بڑا مربی اور پاکستان کا بہترین دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کس طریقے سے اسی حکومت نے حکومت میں آنے سے پہلے پبلکلی چین کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی۔ KPK میں آج 7واں سال ہے ان کی حکومت کا، وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ نے اس دور کے کیا کیا چائنا کے خلاف باتیں کی کہ دل دکھتا ہے کہ وہ ملک جو پاکستان کا ایک مخلص ترین دوست ہے اور جنگوں میں، امن میں، سیلابوں میں، زلزلوں میں، انٹرنیشنل فورم میں، UN میں، سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کا ہر وقت اس نے ساتھ دیا، اس کو بھی ہم نے نہیں بخشا۔ اور آج وہی چین ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ابھی قائد نے بات فرمائی اپنی اسپیچ میں، سعودی عربیہ ہمارے بہترین دوستوں میں شامل ہے۔ کس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور کشمیر کے اوپر وزیر اعظم کی زبان کو تالا لگا ہے، کشمیر کی وادی میں خون بہہ رہا ہے اور وہاں پر کشمیریوں کا جس طرح وہاں پر دن رات ان کو شہید کیا جاتا ہے، ننھے کشمیری کے نانا کو شہید کیا، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ پھر آپ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے یہ پوری قوم اس کے اوپر متفق ہے، جب تک کہ وہاں پر پیلسٹائن کا جو جائز مطالبہ ہے، ان کو ایک زندہ رہنے کا، ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کا، اور جس کے اوپر انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں، جب تک کہ وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بڑا ظلم ہوگا نہ صرف فلسطین کے نہتے عوام، بزرگوں، ماں اور بہنوں کا، بلکہ اس سے آپ کشمیر کے مسئلے کو اور کمزور کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہوگی اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر میں مجھے پھر چند باتیں گزارشات کرنی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے،
یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی. اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے, اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے, اس دور میں مہنگائی تاریخی ہے, اس دور میں غریب ماری تاریخی ہے, اس دور میں بے روزگاری تاریخی ہے, اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے, سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے, معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے. تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں. بس میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا, اور یہ جو شعر ہے اس کے اوپر میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا, معافی چاہتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ جی صاحب, جی مہربانی, تھینک یو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, پھونک ڈالے یہ اسمبلی مستعار ہے نا, یہ نظام مستعار ہے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے.